اور الحمدللہ ہماری کمپنی میں کبھی کبھی لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپنی حلال ہے، اور ہاں کچھ علماء کو بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے کمپنی میں لوگ کبھی کبھی سوال کرتا ہے یہ کمپنی حلال ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے نوحیرہ شیخ۔ یہ ایک ریئر ویڈیو ہے، یہاں تک ہے جیسے گاندھی جی کے اور نہرو جی کے اور ابراہم لنکن وغیرہ کی جو ہے ریئر ویڈیو، اسی طریقے کا ایک ریئر ویڈیو ہے۔ اس کو ریئر ویڈیو اس لیے میں کہہ رہا ہے، نوحیرہ شیخ کو ایک یوٹیوب چینل تھا، اس چینل کا نام نوحیرہ شیخ۔ جب 2018 سپٹمبر میں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں نوحیرہ کے خلاف فرسٹ FIR درج ہوا، اس وقت نوحیرہ شیخ نے یہ چینل کو اڑا دیا، ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے اندر اتنے سارے کنٹروورشل ویڈیوز تھا۔ اس میں سے 3-4 سال پہلے ہی میں نے بہت سارے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا، اس میں سے ایک ویڈیو ہے یہ، اس کا کلپ میں نے آپ کو سنایا۔ اس میں کمپنی حلال ہونے کی بات نوحیرہ شیخ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا نوحیرہ شیخ کے زبان سے یہ کمپنی کیسا حلال ہے، کیسا حرام ہے۔ اس سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں میرا اپنا ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں یہ باتیں ہم بات کریں گے۔ ہیرا گولڈ کی شروعات جو ہے 1998 میں ایک رینٹڈ پراپرٹی میں تروپتی میں جامعۃ النسوان السلفیہ نام کا ایک مدرسے سے شروع ہوا۔ جس دن سے مدرسہ وجود میں آیا اس دن سے لے کر نوحیرہ شیخ نے انویسٹروں سے انویسٹمنٹ لینا شروع کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن سے لے کر نوحیرہ شیخ کا جو پہلا کمپنی عافیہ پلازا میں 2010 میں ہیرا گولڈ ایکسم جو رجسٹر ہونے تک نوحیرہ شیخ یہ انویسٹمنٹ لیتا رہا اور انویسٹروں کو پیسہ دیتا رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بات غور کرنے کا یہ ہے کہ اس 12 سال کے درمیان میں نوحیرہ شیخ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ کمپنیوں کا نام پر نہیں تھا۔ یہ مدرسے کی اکاؤنٹ، اسماعیل کے اکاؤنٹ، ان کے والدہ کی اکاؤنٹ، ان کا خود کا اکاؤنٹ سے یہ جو ہیرا پھیری کر رہا تھا اور کوئی بزنس نہیں کر رہا تھا۔ اور انہوں نے یہ کہہ رہا تھا میں نے گانا سے پاؤڈر لے کے آیا سونے کا، یہاں سے بسکٹ بنایا، دبئی کو بھیجا۔ کون سا اکاؤنٹ سے آپ نے پیسہ دیا؟ کون سا اکاؤنٹ سے ٹیکس بھرا؟ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ آپ انویسٹروں، ایک بات دن کے اجالے کی طرح یہ صاف ظاہر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، 1998 سے لے کر پہلا کمپنی ہیرا گولڈ ایکسم 2010 میں رجسٹر کرنے تک آپ لوگوں نے سود کی کمائی کھایا، سود سے بھی بدتر کمائی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ پونزی اسکیم کی کمائی، یہ سود سے بدتر کمائی ہے، یہ کمائی کھایا، اس لیے آپ کا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ 1,72,000 انویسٹر دن رات سجود میں دعا کر رہا ہے اپنا حل کرنے کے لیے۔ حل کیسے ہوگا؟ آپ نے حرام کھایا، آپ کو توبہ کرنا ہے، اس کے بعد دعا کر کے دیکھو تو حل ہو جائے گا میٹر۔ یہ دھوکے باز عورت نوحیرہ شیخ نے ان کا کمپنی 2010 میں عافیہ پلازا میں رجسٹر کرنے کے بعد پھر دوسرے سال، تیسرے سال، ہر ایک سال ایک کمپنی رجسٹر کرتا رہا، لیکن اس کمپنی کوئی وجود میں ہے ہی نہیں ہے، یہ شیل کمپنی ہے، صرف پیپروں میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہیرا بختوں سامنے آؤ، یہ 15 کمپنی کا پوسٹل ایڈریس بتاؤ، کون سا اسٹیٹ میں، کون سا ڈسٹرکٹ میں، کون سا بلڈنگ نمبر میں ہے یہ کمپنی بتاؤ۔ آپ بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایسا کمپنی ہے ہی نہیں ہے۔ نوحیرہ شیخ نے اسی طریقے کی 15 کمپنیاں رجسٹر کر کے رکھے۔ کیا بزنس کیا؟ بزنس یہ ہے نوحیرہ شیخ کا ایگزیبیشن کنڈکٹ کرنا۔ تروپتی میں ایگزیبیشن کیا، ممبئی میں ایگزیبیشن کیا، اور ہیرا گولڈ اینول جنرل میٹنگ کر کے ادھر ادھر میٹنگ بنایا، اور اس کے بعد مدرسے کا سالانہ جلسہ ہر سال اپریل میں، اور اس کے علاوہ افطار پارٹی، اسی طریقے کی میٹنگ اور پارٹی اور اینول جنرل باڈی میٹنگ کے اندر نوحیرہ شیخ نے اس کے اندر کسٹمروں کو جماتے رہا۔ اس طرح ہیرا گولڈ میں کسٹمروں کو جمانے کے لیے نوحیرہ شیخ نے جو ایک پروگرام کیا تھا سیون ممبئی، اس کا اسکرین شاٹ ہے آپ کے سامنے۔ ہیرا گولڈ اینول جنرل میٹنگ سیون ممبئی 31 مارچ 2013۔ اس میٹنگ میں نوحیرہ شیخ نے جو بیان دیا، کمپنی کا حلال اور حرام ہونے کے جو وعدے کیا، وہ آپ نے سٹارٹنگ میں اس کا جو ایک کلپ سنا، باقی یہاں آپ سن لیجئے، بہت مزے کی بات ہے، وہ سننے کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور الحمدللہ
हमारी कंपनी में कभी कभी लोग जाए लोगों को सवाल करते हैं कि ये कंपनी हलाल है, और हाँ कुछ उलमा को भी कर लेते हैं, जबकि उनको इस चीज की तहकीक नहीं होती है तो वो कुछ भी जवाब फौरन उस वक्त में दे नहीं पाते। हाँ, क्यों सुना आपने? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? और एक बार सुनो। कुछ भी जवाब फौरन उस वक्त में दे नहीं पाते, कुछ भी जवाब फौरन उस वक्त में दे नहीं पाते। क्यों दोस्तों, ये हुई ना सोचने वाली मजे की बात। नौहरा शेख का कहना यह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी में लोग सवाल करते हैं ये कंपनी हलाल है, तो कुछ भी जवाब फौरन उस वक्त में दे नहीं पाती। ये कौन कह रहा है? नौहरा शेख। कब कह रहा है? देखिए स्क्रीन में आप गौर करिए, ये 2013 की बात है। कंपनी कब शुरू हुआ? 1998 में। 1998 से लेकर 2013 तक 15 साल कंपनी चलाया। फिर नौहरा शेख को खुद को मालूम नहीं है ये कंपनी हलाल है या हराम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस बेहुदा औरत ने हीरा गोल्ड कंपनी हराम और हलाल होने के जो सिलसिले में इन्वेस्टरों को कश्मकश में डालने वाला इस वीडियो जब 4 साल पहले मेरे नजर पड़ा, अप्रैल 10, 2016 को, मैंने फौरन एक जवाब यूट्यूब में पेश किया। उसके अंदर हीरा गोल्ड कंपनी हराम होने की 6 दलील पेश किया है। वो उसका लिंक मैं अपना कमेंट बॉक्स में दिया है, आप उसको देख लीजिए। कंपनी हलाल होने के सिलसिले में इन्वेस्टरों को कश्मकश में डालने के बाद आलिमा आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा मोहतरमा रहमहुल्लाह कंपनी हलाल होने की फॉर्मूला बता रही है। वो फॉर्मूला ये है कि कपड़ा हलाल है, सोना हलाल है, सर्विसेज हलाल है, खरीदना बेचना हलाल है, तो कंपनी हलाल है। वही है, हाँ वही है। आप लोग समझ सकते हैं, कपड़ा हलाल है, कपड़े की तिजारत कर रही है, सोना हलाल है, सोने की तिजारत कर रही है, सर्विसेज हलाल है, कंपनी सर्विसेज दे रही है, और खरीदना बेचना हलाल है, वही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये फर्जी आलिमा, ये फर्जी डॉक्टर ने लाखों की तादाद में मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। अल्लाह इस औरत को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, जेल से जेल फिर रही है। और दूसरी बात यह है कि ये औरत ने कंपनी हलाल होने के बारे में ये भी कहा गया है कि माँ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत किया, वही कर रहा है मैं। ये उल्टा जबरदस्ती है। माँ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में बैठकर तिजारत करती थी, लेकिन नौहरा शेख बाजारी औरत बनकर बाजार में उतरकर फिल्मस्टारों के साथ मिंगल होके और T10 क्रिकेट मैच में चीयर लीडरों को अदनंगी नाच को लोगों के सामने दिखाकर और मदरसे के बच्चियों को लोगों को सामने नचाकर अपने आप को इस मुकद्दस माँ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ नाम को जोड़ेंगे तो इसके लिए जहन्नम के अलावा क्या सजा है इस औरत के लिए? ये फर्जी आलिमा अपना कंपनी माँ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के साथ जोड़कर यह साबित करना चाहते हैं कि हमारा कंपनी इस्लामिक शरीयत के मुताबिक मुदारबा कंपनी है। ये मुदारबा क्या होता है इसके बारे में इस औरत को ABCD नहीं मालूम। इन्होंने कभी नहीं कहा ये हमारा कंपनी मुदारबा है। मुदारबा ये होता है कि इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक जो आदमी जो पैसा डालते हैं, जो आदमी स्टॉक डालते हैं, जो आदमी अपना माल इसके अंदर डालते हैं, इसको कहते हैं रब्बुल माल यानी इन्वेस्टर। जो कंपनी चलाते हैं उनको कहते हैं मुदरिब, और ये सिस्टम को कहते हैं मुदारबा। ये सिस्टम कभी नौहरा शेख ने डिक्लेयर नहीं किया हमारा कंपनी मुदारबा है। लेकिन अजीब की बात यह है, कुछ लोग सामने आकर कह रहा है ये कंपनी मुदारबा कंपनी है। इनको कहां से ये वही आया? पहले इनकी बात सुनेंगे हम। सुनिए कि मैंने पैसा इन्वेस्ट हीरा ग्रुप में इसलिए किया था क्योंकि इसकी इजाजत मुझे इस्लाम ने दी है। इस्लाम में तिजारत की एक शक्ल मुजारबत है। मुजारबत में क्या होता है कि एक होता है रब्बुल माल जिसको कि हम इन्वेस्टर कहते हैं, एक होता है मुजारिब। मुजारिब के माने होते हैं दौड़ धूप करने वाले के। तो मुजारबत में रब्बुल माल जो है वो पैसा लगाता है और मुजारिब जो है दौड़ धूप करता है, और मुआहदे के हिसाब से जो भी उनमें तय होता है परसेंटेज, वो अपना मुनाफा लेते हैं और नफे नुकसान के जो है दोनों हकदार होते हैं। तो बिल्कुल इस मुनाफे को और नुकसान को ध्यान में रखकर जो है हमने इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाया है।
हीरा गोल्ड कंपनी को इस्लामी कंपनी का शूज पहनाने वाला इस आदमी की जो वीडियो आपको पूरा देखना है तो इनका चैनल है हिसामुद्दीन शोला, उसमें जाके आप पूरा वीडियो देख लीजिए। मैंने एक छोटा सा क्लिप ही दिखाया है यहाँ। मैं इसलिए ये क्लिप दिखाया, दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि जिन जिन लोगों ने नौहेरा शेख को जो मुकद्दस करवाया, इस कंपनी को इस्लामी तिजारत होने की जो दावा किया, वो लोगों को, जिन लोगों ने इनकी दावा सुनकर इसमें पैसा लगाया और उनका पैसा लॉस हो गया, तो यौमल क़यामत में ये जो वीडियो बनाया हुआ लोगों को, पैसा डाला हुआ लोगों को कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा, ये याद दिलाने के लिए। और इसके लिए आप तौबा करने के लिए एक रिमाइंडर और आप उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए एक रिमाइंडर के वास्ते मैंने ये वीडियो यहाँ डाला। पहला बात। दूसरी बात, ये कंपनी मुकद्दस है, ये कंपनी इस्लामिक है, खामोश रहो, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है करके लोगों को जिन्होंने खामोश करवाया और वर्डिक्ट आने के साथ लोगों को पता चला है कि उनका पैसा डूब गया, तो जिन जिन लोगों ने उनको रोका है, उनका नेकी यौमल क़यामत में जिनका पैसा लॉस हो गया उनको देना पड़ेगा, इसका वार्निंग करना है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि ये जो शख्स है हिसामुद्दीन शोला और इसी तरीके की दूसरी लोगों ने और कुछ आलिमों ने भी हीरा गोल्ड कंपनी इस्लामी कंपनी होने की और हीरा गोल्ड कंपनी मुदारिबत होने की जो दावा किया, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देकर बेंगलोर के अहले हदीस तबके के आलिम शेख अहमदुल्लाह कुरैशी उमर मदनी साहिब ने कहा, ये कोई मुदारिबत नहीं है, ये कंपनी क्या है कि इधर पैसा फेंक उधर पैसा ले। सुनिए उनकी बयान। माँ खदीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत करते थे, वो तिजारत मुजारबत है। आपकी तिजारत वैसी नहीं है, इधर पैसा फेंक उधर महीने को पैसा ले। ये तो क्या है, सूद है। तो लिहाजा हमारी चीज बिकती भी नहीं, आप नफा देते हैं, हमारी चीज ऐसे ही रहती है, नफा देते हैं। ये बताओ कि शरीयत में कहाँ हलाल है। तो हलाल हराम जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत नहीं देगा, आपको अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। और आप ये मत समझो कि मैं पैसे वाली हूं। किसके पैसे ही है? अवाम के पैसे ही, आपके नहीं हो। मैं तो कहा ना, चैलेंज किया आपको, आप है ना सारे लोगों के पैसे बांट दो, फिर अपनी कंपनी चला करके दिखाओ। आप वो काम करने के बजाय मेरे पास 100 करोड़ मांग रही हैं। अगर मेरे पास 100 करोड़ होते तो कितने मदरसे, कितने मसाजिद और कैसे रिफाही काम करता मैं, लोग देखते देखते रह जाते। वाकई अहमदुल्लाह कुरैशी साहब ने सच बोला, हक बोला। हक बात करने के लिए नौहेरा शेख ने इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन नोट सर्व किया है, वो उनकी बातों से आपने सुना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये हक की बात ये अहमदुल्लाह कुरैशी कब से कह रहा हूं आपको पता है? ये बहुत ताजुब की बात है। गए 20 साल से नौहेरा शेख के खिलाफ अहमदुल्लाह कुरैशी साहब कह रहा है। ये जो हीरा गोल्ड आने से पहले नौहेरा शेख को और नौहेरा शेख के पूरे खानदान को और उनकी 420 तरीके से लोगों को बीच में उतरकर पैसा बनाने के सब कुछ अहमदुल्लाह कुरैशी को मालूम है। इसलिए गए 20 साल से ये कंपनी हराम है, नौहेरा शेख का तरीका हराम है करके इन्होंने बोला। ये बात आप नौहेरा शेख की जबान से सुनिए। एक जाहिल शख्स की जिसका नाम हामिदुल्लाह कुरैशी है, मैं इसको 20 साल से मैं भी जानती हूँ। ये आज नहीं मेरा मुखालिफ है, 20 साल से ये मेरा मुखालिफ है। नौहेरा शेख की ये बात, गए 20 साल से ये आदमी मेरा मुखालिफ है करके कहना आप लोगों के लिए एक इबरत है इसके अंदर। कल आया हुआ असदुद्दीन ओवैसी, उसके बारे में आप लोग डंडोरा पीट रहा है। गए 20 साल से ये कंपनी हराम है, हराम है, हराम है करके चिल्लाकर बता रहा है। अहमदुल्लाह कुरैशी ने, इन्होंने बेशुमार कुतबों में, इनका जो मस्जिद है बेंगलोर में, ये कहा हीरा गोल्ड हराम है। और इनकी तरीके से बहुत सारे उलमाओं की जो है वीडियो यूट्यूब में मौजूद है हीरा कंपनी हराम होने की। फिर भी लोग इसके अंदर पैसा डाला हुआ लोग ये कह रहा है हमारा रहनुमाई कोई उलमाओं ने नहीं किया, ये गलत है। अभी आपको पता चला आपने गलत कह रहा है, तौबा करो, टाइम ज्यादा हो गया है और अल्लाह से माफी मांगो और कंप्लेंट करने का सोचो और आपका पैसा हलाल तरीके से लेने की कोशिश करो और ये 420 औरत के साथ मत दो। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।